तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा है आप सभी को, लेकिन कहते हैं ना कि इंतजार का जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। हमारे चीफ गेस्ट नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, कुछ ही सेकंड्स में इस हॉल में मौजूद होंगे। कुछ ही सेकंड का इंतजार और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हमारे बीच मौजूद है। जोरदार तालियों से हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का। तालियां थोड़ी कम है, तालियां जोरदार बजनी चाहिए, क्योंकि नितिन गडकरी जो कि हमारे चीफ गेस्ट हैं, जिनका पक्ष व विपक्ष सब कोई तारीफ करता है, वो हमारे बीच इस समय मौजूद है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिनका इंतजार हम सुबह से कर रहे थे, क्योंकि चीफ गेस्ट हमारे नितिन गडकरी अभी हमारे बीच है। और अब मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग प्लीज चेयर पे एक एक करके बैठ जाएं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, प्लीज एक एक करके आप लोग सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें, क्योंकि नितिन सर अभी फिलहाल हमारे साथ हैं। और तालियां इस बार जोरदार होनी चाहिए, लगना चाहिए कि न्यूज इंडिया के कॉन्क्लेव में नितिन गडकरी साहब आए हैं। तो तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए प्लीज, क्योंकि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री अपने कीमती समय से समय निकालकर हम सबके बीच है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया के इस न्यूज इंडिया के राइजिंग कॉन्क्लेव में, जहां पे आपका इंतजार लंबे समय से हम सभी कर रहे थे। तो अब चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने अपने सीट पे आप सभी बैठ जाएं। मेरी गुजारिश आप सभी से है कि अपने अपने सीट पे प्लीज बैठ जाएं। तो चलिए मैं अपनी टीम से अब ये कहता हूं कि एक सर थोड़ा सा समय आपका लेते हुए निम्स जिसे सींचा है हमारे चेयरमैन सर ने, क्या है वो एक छोटे से ग्राफिक्स के जरिए, कुछ चीजों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, प्लीज। A highly decorated and fortunate individual with a huge list of medical feats and adornments to his credit, Professor Dr. Balbir Singh Tomar is the Chancellor and Chairman of NIMS and NIFLUX Group of Companies. Born in Varanasi on the 28th of August in 1950 in a noble family of Mr. Gautam Singh Tomar and Mrs. Rajeshwari Devi, Dr. Tomar is a well-accomplished professor, doctor, philanthropist and an Indian businessman. An exceptional student throughout his school life, Dr. B.S. Tomar was admitted to the Gajra Raja Medical College, Gwalior to complete his MBBS and MD. As a true and fantastic achiever, he claimed top spots and gold medals for MBBS and MD at the GRMC. Later, he pursued studies in pediatric nutrition at the prestigious Harvard University in the United States. He then moved to King's College Hospital School of Medicine, University of London, to conclude his specialization in pediatric liver disease. He outperformed at King's College and was awarded a gold medal. Dr. Tomar made the most significant achievement by inventing a medical treatment for Indian childhood cirrhosis, a deadly disease among the children. With the medicine D-penicillamine, Dr. Tomar made it possible to cure the disease. Dr. B.S. Tomar strongly believed that healthcare and education are the most basic needs of a human being. Therefore, he decided to set up NIMS Hospital and NIMS University. Let's know more about their ventures. NIMS Super Speciality Hospital. Established in 2001, NIMS Super Speciality Hospital is equipped with state-of-the-art technology to provide affordable and advanced healthcare to the public. NIMS Medical Science and Research Center. The NIMS Medical Science and Research Center was founded in 2003, and the primary objective of the institute was to impart knowledge to the young generation and raise able and knowledgeable doctors for the betterment of society. NIMS University. NIMS University of Rajasthan, Jaipur, is established under the Act 2008 and is recognized by the UGC, accredited by the NAAC. NIMS is the only university in Rajasthan with medical college to feature in rank band 101 to 150 in the university category by the NIRF. It provides 450 plus courses among 24 colleges.
national news channel News India 24/7. Established in 2014, News India 24/7 is India's leading 24/7 Hindi news channel that provides the latest news from all over the world. The channel is run under the supervision of versatile and dynamic personality Ms. Diksha Sharma. NIMS International School. NIMS International School is an English medium school affiliated with the CBSE, featuring 120 faculties and 500 plus students with all modern infrastructure and laboratories. Niflux LED Lights. Niflux LED Lights is the country's leading brand in LED lighting products. It is an internationally recognized brand with a global presence in countries like the United Kingdom, Canada, Italy, the United States, and Spain. Niflux Pharmaceutical Private Limited. Niflux Pharmaceutical constantly works towards ensuring access to high-quality medicines for patients in need. Eva Super Speciality Hospital, Jaipur. Eva Hospital is the most preferred destination for quality healthcare in Jaipur city. He also incorporated Dr. B.S. Tomar Foundation to give financial assistance and boost CSR work. Let's know more about CSR activities. Free health camps in villages and cities of Rajasthan, Haryana, Delhi and Uttar Pradesh. More than 15 buses are regularly operated for transportation convenience to the patients. Free delivery, treatment and care of poor women and children under Srimati Rajeshwari Devi Jacha Bachcha scheme. Free education in NIMS International School for girls born in NIMS Hospital. Throughout his career, Dr. Tomar has widely been admired as an innovator, dynamic leader, motivator, a strategist and humane educationist. He was honored with many prestigious awards. It includes Rajiv Gandhi Award, the International Award, Bharat Gaurav Award, Global Achievers Award, Lifetime Achievement Award, Chikitsa Ratna Award, and many more. Dr. Tomar was associated with various prestigious organizations in India निम्स ग्रुप and को abroad सींचा है as सर ने president, अपनी पूरी director, लगन और advisor, मेहनत के and साथ member. और Dr. एक बार Tomar जोरदार has तालियां होनी completed चाहिए 72 निम्स years ग्रुप of के his लिए life's जिस तरीके journey से निम्स and ग्रुप को still सर ने has सींचा the है। same energy. अब सर आपने जिस तरीके से काम किया है खास करके सड़कों के क्षेत्र में बहुत सारा है बताने को, लेकिन एक छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से, एक बहुत छोटी सी भी हमने आपके लिए तैयार की है। प्लीज। नितिन जयराम गडकरी बीजेपी के कद्दावर नेता और मोदी सरकार में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। इन्हें बीजेपी के सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल है। 2010 से 2013 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। नितिन गडकरी ने काम की वजह से अपनी एक अलग पहचान बनाई। इन्हें मुंबई पुणे हाईवे बनाने का श्रेय जाता है, जो भारत का पहला 6 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है। 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का पद संभालने के बाद इनके विजन ने देश के राष्ट्रीय राजमार्ग की सूरत बदल डाली, जिसकी चर्चा आज दुनिया में हो रही है। गडकरी ने 2024 तक हर रोज 40 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्ग के 60,000 किलोमीटर सड़क का टारगेट रखा। इतना ही नहीं, देश में सड़क हादसों को 2024 तक 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। टाइम फ्रेम में काम को पूरा करना इनकी सबसे बड़ी खासियत है। आपने इथेनॉल और हाइड्रोजन से चलने वाली कार के सपने को साकार किया। बेहद शालीन नितिन गडकरी बेबाक बोलते हैं और अपनी खामियों पर बोलने से भी परहेज नहीं करते। न्यूज इंडिया 24/7 के राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। तो सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया के इस कॉन्क्लेव में। और अब मैं नितिन सर से अनुरोध करूंगा कि सर प्लीज आप स्टेज पर आए। मैं चेयरमैन सर से भी अनुरोध करूंगा, एमडी मैम से भी अनुरोध करूंगा और हमारे एडिटर इन चीफ
तो तालियां थोड़ी हो जाए। बहुत जल्द ये शो आप न्यूज इंडिया पर देखने वाले हैं। अब मैं मंच सुपुर्द करना चाहूंगा हमारे एडिटर इन चीफ विजय सर को। सर, चर्चा को आगे बढ़ाएं। थैंक यू अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया गडकरी साहब। नितिन जयराम गडकरी का नाम सब लोगों की जुबान पर है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, इसलिए कि सबसे ज़्यादा ताकतवर होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा काम करने वाले मंत्री हैं। तो एक बार ताली बजानी चाहिए। गडकरी साहब जब पहली बार महाराष्ट्र में सरकार में मंत्री थी, तब से उनका नाम की चर्चा शुरू हुई। फ्लाईवे मिनिस्टर तौर पे, फ्लाईओवर मिनिस्टर के तौर पर उनकी यात्रा शुरू हुई और वो रफ्तार लगातार बढ़ती रही है। अभी सरफेस ट्रांसपोर्ट में उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया कि 40 किलोमीटर प्रतिदिन हम लोग एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है जो 60,000 किलोमीटर का एक टारगेट रखा है गडकरी जी ने। दूसरा जो काम है वो है ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम शुरू किया। उसके बाद अभी जब हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, उससे पहले वो एथेनॉल से चलने वाली गाड़ी का उद्घाटन करके हाइड्रोजन कार में आया हुआ है। हाइड्रोजन कार में अभी आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान को कार से भी ज़्यादा रफ्तार से वो आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे खास बात है कि हमारी सरकारों के काम अक्सर लेट होते हैं, तो टाइम फ्रेम पर काम कराना और जो लोग काम करते हैं उनको क्या कहूँ सर, नकेल कसना का काम गडकरी साहब का है कि वो टाइम पर काम हो, ईमानदारी से काम हो, ठीक से काम हो। और अपनी सरकार में भी काम गलत हो जाए तो गडकरी साहब सार्वजनिक तौर पे कहते हैं कि इस काम को ठीक करवाना है। तो इस तरह के ताकतवर मंत्री का हम लोग स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी सबसे कम उम्र में रहे हैं, नागपुर से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री लगातार रहे हैं। और ये भी एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन 8 साल तक सबसे लंबे समय तक सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहने वाले गडकरी साहब भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बात सरफेस ट्रांसपोर्ट से करते हैं। आपने सरफेस ट्रांसपोर्ट को हवाई रफ्तार दी है, क्या आपका सपना है? देखिए, हमारे देश में अभी परिस्थिति ऐसी है कि करीब 80% गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक रोड पर चलता है जी। दूसरी बात ऐसी है कि एक्चुअली सही ये होना चाहिए कि पहली प्रायोरिटी वाटरवेज को होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी रेलवे को होनी चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी रोड को होनी चाहिए और फोर्थ एविएशन को होनी चाहिए। पर दुर्भाग्यवश आप अगर यूरोप में जाएंगे तो हर जगह पर वाटरवेज है, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में, और उसके कारण उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है। जैसे अगर हम रोड से जाते हैं तो फॉर एग्जांपल 10 रुपये लगता है, अगर हम रेलवे से जाते तो 6 रुपये लगता है, और पानी से जाते तो 1 रुपया लगता है। तो पहली बात, हमारे देश में एक समय वाटरवेज थे, पर बाद में ये निगलेक्ट हुए और अभी हमारे देश में वाटरवेज नहीं है। मैं जब शिपिंग मंत्री था, आपने उस पर भी काफ़ी काम किया। हाँ, मैंने गंगा में वाराणसी टू हल्दिया वाटरवेज बनाया 3 मीटर ड्राफ्ट का। फिर हल्दिया से बंगाल की खाड़ी है, वहाँ से ब्रह्मपुत्रा में मैंने पूरा ड्रेजिंग कर दिया 3 मीटर का। और इतना ही नहीं, तो सुषमा जी के आग्रह पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो बांग्लादेश में घुसकर मैंने 250 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा में ड्रेजिंग कर दिया, बाराक रिवर में भी किया। और हमारा देश है कि जो हमारे पास अभी, हम चेन्नई से पूरे देश में समुंदर सब जगह नहीं है, तो वाटरवेज और सी दोनों का उपयोग करके अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे तो हम बड़े प्रमाण पर पैसा बचा सकते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में हमारी समस्या क्या है? हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, चाइना में 8 से 10% है, और यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका में 12% है, 10 से 12% है। तो हमारा एक्सपोर्ट करते समय ये कॉस्ट बढ़ती है। अगर हम वाटरवेज डेवलप करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो सकती है, कम हो जाएगी। अभी जैसे चेन्नई में कुछ गाड़ियाँ बनती हैं, तो मेरे समय मैंने ये प्रयोग किया था कि चेन्नई में जैसे ये बहुत सी गाड़ी हो जो ब्रांड में नाम नहीं लेता वो वहाँ बनती है, और यहाँ की गुड़गांव में कुछ गाड़ी बन के उधर जाती है। तो मैंने एक रोपैक शुरू किया था। वो चेन्नई से ट्रैक्टर और गाड़ियाँ भर के कांडला आता था, और कांडला से फिर वो करके वो वापस दिल्ली रेलवे से आती थी गाड़ियाँ, और दिल्ली की गाड़ियाँ भर के फिर कांडला जो कांडला से चेन्नई जाती थी। अभी विशाखापट्टनम का लोहा, कोचीन, मुंबई
और गुजरात में आने के लिए वहाँ से लाया था। तो एक प्रकार से हमारे देश में वाटरवेज अभी भी ठीक से डेवलप नहीं हुए। दूसरी बात जो मेरा सपना था कि MPBS सी प्लेन यानी पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज, जी, तो मैं इसके पीछे पड़ा और मैं खुद मुंबई के समुद्र में हवाई जहाज में उतरा। हाँ, आपने तो उतार दिया उसको। उतार दिया। और फिर उसके बाद मोदी जी ने भी मुझे कहा और उन्होंने भी ये अहमदाबाद में वो जो अपना फ्रंट है इसका नदी का, उसके ऊपर वो भी प्लेन में गए। तो पहली बात तो ये MPBS सी प्लेन के लिए हमने कानून बना दिया। अभी इन्वेस्टर चाहिए 18 करोड़ का एक है। अभी आपके जो प्रोप्राइटर है तोमर साहब, इनको मैं कहूँगा कि आप इतने कर रहे हो तो अभी आप सी प्लेन खरीद लो। 18 करोड़ का है, 18 सीटर। और यहाँ से वाराणसी का जो है दिल्ली से उड़ेगा और वाराणसी में या लखनऊ के अंदर गोमती के नदी में उतर जाएगा। तो आपको ये दिन दूर नहीं, मैंने सब नियम बना दिए, कानून बना दिए। जब इसमें देरी हो रही थी तो मैंने एविएशन मंत्री जी को कहा तुम जल्दी बनाओ, नहीं तो मैं इसको, ये तुम्हारा एक्ट बनने के बजाय मैं इसको फ्लाइंग बोट कहता हूँ। आप जिसको MPBS सी प्लेन कहते हैं, मैं उसको फ्लाइंग बोट कहता हूँ। मैं कानून बना के बनाऊंगा। तो अब कानून तैयार हुआ है और अभी स्पाइस जेट वाले हैं, जल्दी ही 50-60 हवाई जहाज खरीद रहे हैं और जल्दी ये शुरू हो जाएगा। तो मेरा सुझाव यही है कि देश की सबसे बड़ी समस्या है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, इंटरनेशनल मार्केट में हमको कंपटीशन करने के लिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हमारे देश में 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोल, डीजल और गैस का। और मैं 2004 से मिशन मोड में काम कर रहा हूँ कि हमारे देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। और आज उत्तर प्रदेश में है और काफ़ी जगह पर, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में गन्ना, ये पूरी वेस्टर्न यूपी में गन्ना है। और शुगर हमारे पास सरप्लस है, कॉर्न सरप्लस है, राइस सरप्लस है। हमारे देश की रिक्वायरमेंट 280 लाख टन शुगर की है और हमारे देश में शुगर पैदा हुई है 380 लाख टन, यानी कम से कम 100 लाख टन शुगर ज़्यादा तैयार हुई है। और इसलिए पिछले साल के 60 लाख टन, यानी 160 लाख टन शुगर एक्सेस है। इसके कारण शुगर की प्राइस डाउन हो गई और गन्ने के भाव और शुगर के प्राइस में मिसमैच होने के कारण शुगर फैक्ट्री बंद पड़ गई। तब मैं पीछे पड़ा कि भाई हम बायो इथेनॉल पर जाएं। तो शुगर के जूस से, बी मोलाइसिस से जो 7% शुगर होती है, बेबी मोलाइसिस, और सी मोलाइसिस जिसमें 4% होती है, अब उसमें उत्तर प्रदेश में इथेनॉल बनता है, बायो इथेनॉल। अब ये बायो इथेनॉल जो बनता है ये फर्स्ट जनरेशन शुगर केन जूस से था। अब कॉर्न से, ब्रोकन राइस से भी इथेनॉल बनता है और इसके कारण किसानों को ज़्यादा भाव मिलेगा। और ये ग्रीन फ्यूल है, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, पोल्यूशन फ्री है और इंडिजिनस है। ब्राज़ील में फ्लेक्स इंजन है। अब फ्लेक्स इंजन की गाड़ी मैंने लॉन्च की, टोयोटो कंपनी की एक कैमरी करके गाड़ी है। वो गाड़ी ऐसी है कि जो 60% पेट्रोल पे चलती है और 40% बिजली तैयार करती है। वो कैमरी अब ऐसी, अभी टोयोटो के सब मॉडल ऐसे आ रहे हैं कि 100% बायो इथेनॉल होगा और 40% बिजली तैयार करेगी। मुझे और इथेनॉल का भाव 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का 120 रुपये लीटर। दूसरा, मैं अभी आपके कार्यक्रम में आया हूँ, वो हाइड्रोजन के गाड़ी में आया हूँ। अब ये जो फिर ताली बजनी चाहिए। अब ये हाइड्रोजन की गाड़ी, हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। पहला हाइड्रोजन जो है, जो पेट्रोलियम से होता है बाय प्रोडक्ट करके, वो ब्राउन हाइड्रोजन। जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन। और मेरा जो कंसेप्ट है कि जो गंदा पानी है, सीवेज वाटर, उसको शुद्ध करके इलेक्ट्रोलाइज़र का, वी आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हम इलेक्ट्रोलाइज़र सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में तैयार करते हैं, अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइज़र 1 करोड़ 20 लाख का है। और ये सीवेज वाटर को शुद्ध करके इलेक्ट्रोलाइज़र से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अलग करेंगे और हाइड्रोजन को इथेनॉल के जनरेटर, क्योंकि डीजल का भाव 110 रुपये है। अभी किर्लोस्कर ने इथेनॉल का जनरेटर भी मेरे आगरा से बनाया और इथेनॉल के जनरेटर पे उसको प्रेशराइज करके उसको 500 बार पर लाके गाड़ी में भरेंगे। अभी जर्मनी में 1000 किलोमीटर ट्रेन हाइड्रोजन पे चली, हवाई जहाज चलेंगे, आपकी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में जो लगता है वो चलेगी, स्टील फैक्ट्री चलेगी और पानी से एनर्जी मिलेगी। और हम लोग एनर्जी को आयात करने वाले नहीं, हम एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। और आज हमारे जो किसान हैं ये सब इसमें गांव में अगर ये तैयार करेंगे तो होगा जी। तो यही इसकी वे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, और छोटी सी बात कह दूंगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के हैं,
ये जो परली है, जी पराली, जो ये जलाते हैं पूरा पंजाब हरियाणा में, जिससे दिल्ली में पोल्यूशन होता है। तो अभी मैं बहुत दिन पीछे था, इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्लांट डाला है जो परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाता है और 150 टन बायोबिटुमिन बनाता है। और अभी CSR और मैं पीछे पड़कर एक यूनिट तैयार हुआ है कि अपने खेत में ही ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट में हम परली डालेंगे और परली से लिक्विड फॉर्म में बायोबिटुमिन तैयार होगा जो हम रोड से बनाएंगे, और ऑर्गेनिक कार्बन तैयार होगा। ऑर्गेनिक कार्बन ऐसा है कि जहाँ 0.20 ऑर्गेनिक कार्बन है ज़मीन में, वहाँ गन्ने का उत्पादन 35 टन है, और जहाँ 0.80 है वहाँ 100 टन के ऊपर है। तो उत्तर प्रदेश का गन्ने का उत्पादन 2 गुना 3 गुना बढ़ सकता है अगर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो राइस स्ट्रॉ से हम बायो CNG बना सकते हैं, बायो LNG बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन बना सकते हैं, बायो बिटुमिन बना सकते हैं। दैट इज वेस्ट टू वेल्थ। 2 फिलॉसफी जिसका मैं जिक्र करता हूँ, वन इज इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. That is the first thing. And second is, no one is waste. No material is waste. It is depending upon the appropriate technology and appropriate leadership and the vision of the leadership that you can convert waste into wealth. तो मुझे लगता है कि अगर ये 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट अगर हमारे किसानों के पास ये पैसा जाएगा तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश का इंपोर्ट कम होगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। जो दिल्ली में आज प्रदूषण हो रहा है प्रदूषण नहीं होगा, और उसके साथ साथ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पर ही डेवलप होगा। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो पूरा होगा। गडकरी जी को आप सुन रहे हैं, मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि वो भारत सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जैसे बात करते हैं, उससे लगता है कि कोई बिलियनर, मल्टी बिलियनर इंडस्ट्रीज जो है, एंटरप्रेन्योर है, वो बात कर रहा है। आमतौर पे हमारे यहाँ राजनेता इस तरह से बात नहीं करते कि इस तरह से प्रोजेक्ट्स पर बात करें। और मुझे 2000 से याद आता है सर, जब आपके साथ बात करते थे और आप एथेनॉल की बात उस समय बहुत किया करते थे, बायो एथेनॉल की, तो लोग नॉर्मली हंसा करते थे कि ये तो एक सनक होगी गडकरी साहब की कि बायो एथेनॉल पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज उसको आपने ज़मीन पर देखो, ला दिया। आउट ऑफ बॉक्स जी, जब कोई बात करते हैं तो लोग उस पर विश्वास नहीं रखते। जी, अब वो सब लोग इथेनॉल पे विश्वास, अब 40,000 करोड़ जो पेट्रोलियम मंत्री जी ने हमें बताया, जी, केवल इथेनॉल के कारण देश के पैसा बचा है 40,000 करोड़, और कम से कम 80,000 करोड़ किसानों के जेब में गए। और अगर ये इथेनॉल तैयार नहीं होता और शुगर सरप्लस होती तो ये पूरे वेस्टर्न यूपी और यूपी के किसानों को गन्ने का पैसे ही नहीं मिलता और पूरी कारखाने बंद होती। तो एक बार इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, और आगे आने वाले समय में हमको और बढ़ाना है, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं इस देश से पेट्रोल और डीजल को समाप्त करना चाहता हूँ जी, और हमारा देश आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी टेक्नोलॉजी के आधार पर। हमारा किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। मैं किसान हूँ, मेरे यहाँ अभी 50,000 एकड़ गन्ना लगा है, मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। और वो महाराष्ट्र में हमारे यहाँ कोऑपरेटिव वगैरह चलता है, तो उसमें हम लोग काम, कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत काम किया है महाराष्ट्र में। तो अभी हमारे कंपनियों का टर्नओवर 2,500 करोड़ है, वो मेरी मालकी की नहीं है। अभी जैसे कोऑपरेटिव स्टोर है, उसमें 80 करोड़ टर्नओवर, 6,000 लोग मेंबर हैं। तो ये दिल्ली में किसी को ये करते नहीं तो उनको लगता है ये इनका ही है, मेरा नहीं है। मेरा शेयर 5,000 रुपये का है। वो पूरा जो है वो लोगों के मदद से तैयार होता है। जी, तो हज़ारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और उससे एक पूरा परिवर्तन जो आया है, बदलाव आया है हमारे पूरे सरफेस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। सर, आपका सरफेस ट्रांसपोर्ट, और एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब वाजपेयी जी की आई, तब राष्ट्रीय राजमार्ग का काम शुरू हुआ। उस काम से आज तक पर हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है। आप भी समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सरकारों में ऐसे, हरिशंकर परसाई मुझे याद आते हैं कि वो कहते थे कि सरकारी नौकरी में भी काम करना पड़े तो बड़ी जलालत की बात है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपने बदला है, और सरफेस ट्रांसपोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर को बदली है, ये प्रैक्टिकली नहीं। आप एक छोटी सी बात समझिए कि हमारे देश के ग्रोथ में 2 सेक्टर इंपॉर्टेंट है, कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। जी, इंडस्ट्री चाहिए तो 4 बातें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसके सिवा इंडस्ट्री नहीं आएगी। और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना है तो इरिगेशन, पावर, सीड अच्छा चाहिए, टिश्यू कल्चर चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए, एक्सपोर्ट चाहिए। तो एग्रीकल्चर में भी वाटर और पावर चाहिए।
और इसलिए हमारे देश का अगर ग्रोथ रेट बढ़ाना है तो आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। टोटल जीडीपी ग्रोथ में केवल 12% हमको एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री का उत्पादन है, जबकि 65% पॉपुलेशन उसके ऊपर डिपेंड करती है। जो रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल और जंगल का एरिया है वो बैकवर्ड है सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली। इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन देश के ग्रोथ में 22% है, और सर्विस सेक्टर का हमारे यहाँ 52 से 54% है। अब एग्रीकल्चर का अगर हम 22% करेंगे तो कोई मेरठ गांव को छोड़कर दिल्ली नहीं आएगा। ये बिहार यूपी से सब गांव से लोग आ रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। इसका कारण रोजगार नहीं है। जैसे आपने हॉस्पिटल खोला, अगर वही हॉस्पिटल में ऑपरेशन अगर उस गांव में होगा तो लोग क्यों दिल्ली मुंबई आएंगे। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में हम लोग जब डेवलप करेंगे और लोगों को सर्विसेज मिल जाएगी तो लोग शहर में नहीं आएंगे। और इसलिए आने वाले समय में देश में हमको समतोल विकास करना होगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा। और इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री क्यों चाहिए कि इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आए बिना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होगा, और रोजगार नहीं मिला तो गरीबी दूर नहीं होगी। अभी मैं एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 12,000 करोड़ का रोड बना रहा हूँ जी। इसका पहला फायदा क्या है कि लोग 6 महीने के बजाय साल भर जा सकेंगे। अब वर्ल्ड से लोग आएंगे तो 6 महीने भी टैक्सी जो 6 महीने चलती थी वो 6 महीने चलेगी, बसेस 6 महीने साल भर चलेगी, होटल चलेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे, हवाई जहाज चलेंगे। तो नेचुरली क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी की बात अक्सर कहता हूँ, जो मेरे ऑफिस में लिखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अभी मैं कल उत्तर प्रदेश में, बिहार में था। कि हिंदुस्तान के लिए भी ये बात कही जा सकेगी सर। अभी बिहार में और यूपी में जो रोड बने, आप ही लोग देखिए, ये मेरठ, अब मुझे ज़्यादा कम ज्योग्राफी मालूम है जी, हाईवे। मैं पहले जाता था 4 घंटे लगते थे, इतना ट्रैफिक रहा। ये कल ही मैं गया था नोएडा, तो वो मैंने एक 18 लेन का रोड बनाया, ये सब ट्रैफिक जाम रहता था ये नोएडा के रोड जी। अभी कुछ नहीं था, इतनी गाड़ियाँ एक समय चल रही थी। अभी दिल्ली से मेरठ आने को 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट लगते हैं। तो मुझे कल मैं एक बुखारा में खाना खाने गया था, तो एक परिवार मेरे पास आया और उनने कहा कि हम मेरठ में रहते हैं। मैं हमके बहुत आभार मानते हैं, हम मेरठ में रहकर 1 घंटे में यहाँ आए मौर्य शेरेटन में, और अभी बुखारा में खाना खा रहे हैं और 1 घंटे में चले जाएंगे। और आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस आते 40 मिनट में आ जाते हैं। तो अब मेरठ में जो लोग रहते हैं वो दिल्ली में काम करते हैं। मेरठ मुझे जर्मनी के मिला इंजीनियर, वो बोला मैं दिल्ली में फ्लैट लेके रहता था, अब मैंने मेरठ में बंगला बनाया और मैं मेरठ में रहता हूँ और दिल्ली में रोज़ आना जाना करता हूँ। तो ये रोड की डेवलपमेंट से, वो भी देहरादून से वो दिल्ली, मैं हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूंसी गया था, तो उनने भाषण में मेरे पहले उन्होंने कहा कि देखो नितिन जी, हमारा कितना इम्पोर्टेंट, देहरादून में रोज़ दिल्ली से 12 फ्लाइट आती है जी। तो मैंने भाषण में कहा चिंता मत करो, इस दिसंबर एंड के बाद एक भी नहीं आएगी। अभी मुंबई से पुणे आती थी 8 फ्लाइट, अब फ्लाइट ही बंद हो गई 10 साल से। पूरा एक्सप्रेस वे मुंबई। अभी देखो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो मुझे बताइए कि वो लोग अपने गाड़ी में ही जाएंगे। और ये मैं इस साल दिसंबर के अंदर ये हो जाएगा जी। वाह, क्या बात है सर। एक्सप्रेस वे 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन एक्सप्रेस वे बनाए आपने और रफ्तार बढ़ी है, लेकिन कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि एक्सप्रेस वे जब हमने बनाए तो टोल रोड्स बना दिए सारे के सारे, तो उससे आम आदमी के लिए थोड़ा महंगा हो गया है। और दूसरा एक छोटी सी बात उसमें कि टोल रोड्स पर जो आप नया काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे टोल रोड पर चलते हैं और फिर 60 किलोमीटर बाद फिर आधा किलोमीटर की लाइन होती है, तो वो सारी स्पीड जो है कम हो जाती है। पहली बात तो ऐसी है, आपने कार्यक्रम भी 5 स्टार होटल में किया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऑप्शन था रामलीला मैदान पर, आप बैठ जाते हो, मैं भी बैठ जाता, फुकट में होता। देखो, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अब मैं आपको पूछता हूँ, दिल्ली से मेरठ आने में गियर बदल के टाइम वेस्ट करके पोल्यूशन में 4.5 घंटे लगते थे। अगर आप 2 घंटे में आए तो आपका पेट्रोल डीजल कितना बचा? और इसलिए जो सेविंग हुआ है वो टोल उससे तो कम ही है।
और देखिए भारत के पास अभी मेरा 2 लाख करोड़ का बजट है और मुझे रोड बनाना है 5 लाख करोड़ के साल के। तो ये पैसा अभी मैं आपको और अच्छी बात बताऊंगा आपके मार्फत कि हम इनवीट, बीओटी, पीपीपी, हाइब्रिड एन्युटी ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें कुछ मॉडल मैंने शुरू किए। मैंने देश का पहला बीओटी प्रोजेक्ट शुरू किया। अब मुझे बताइए टीवी और घर कैश पेमेंट के लिए चेक से तुरंत तो कितने में पड़ेगा, और 15 साल के इंस्टॉलमेंट पे लिया तो ब्याज लगा के कितने में पड़ेगा। तो अभी ऐसा है कि हम लोग टोल में भी अभी ऑटोमोबाइल नंबर प्लेट आधारित टोल सिस्टम ला वो नई तो आपको कोई अटका, वैसे हमारा फास्ट ट्रैक है जी, अब रुकना ही नहीं आपको, वो कैच करता है, इमेज चला अभी वो भी आ रही, तो आपको रुकना ही नहीं, आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा निकल जाएगा जी। तो ये देखिए, ये एक्चुअली आज दिल्ली से मुंबई एक ट्रक को जाने के लिए 48 आवर्स लगते हैं, तो वो महीने में मुश्किल से 7-8 ट्रिप कर सकता है, 7 ट्रिप खूब किया तो। अब हाईवे बनने के बाद वो कम से कम 13 से 14 ट्रिप करेगा जी, डबल हो जाएगा। अब डबल ट्रिप करेगा तो उसका बिजनेस बढ़ेगा, फ्यूल बचेगा, कॉस्ट बचेगी, टर्नओवर होगा और समय बचेगा, ट्रक की लाइफ भी बढ़ती है, लाइफ भी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है इसमें उसका सेविंग है। तो ये देखिए आज देश में पूरे वर्ल्ड में है, और कहीं भी आप समझिए कि अभी आप चाय पीना है तो टपरी पे पियो, 5 रुपये में मिलेगा। अब आपको चाय अगर 5 स्टार होटल में पीना है आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। अब मैं वैसा तुलना नहीं कर रहा हूँ, पर आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर ये जनता का ही पैसा, हम कोई सरकार काम कर रही है, सरकार मुझे 2 लाख करोड़ का बजट दे रही है। अभी मैंने इनवीट मॉडल में बॉन्ड्स इशू निकाला, ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और आपको ताज्जुब होगा कि मैं 10 दिन के लिए टाइम था और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने रजिस्टर किया और चालू किया। पहले 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ और मुझे इतना पैसा दिया लोग। अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। मैं अब बड़े लोगों के पैसे से रोड नहीं बना रहा, जो पत्रकार है, छोटे सरकारी सर्विस में है, कांस्टेबल है, इनको मैं 8.02% इंटरेस्ट पर ईयर दे रहा हूँ गारंटीड, और उसको इंटरेस्ट हर महीने में मिलेगा। जो रिटायर्ड है उसको बैंक में उसको एफडीआर पे कितना मिलता है, 4.5, 4.5, 5%। अब मैं उनको 8.2% दे रहा हूँ और मंथली उसके अकाउंट में जमा होगा। तो नेचुरली मैं उन लोगों को बेनिफिट दे रहा हूँ कि रोड उनके पैसे से बनेंगे और बेनिफिट उनको मिलेगा। जी सर, कुछ लोगों ने सवाल किया कि गडकरी साहब आएँ तो ये ज़रूर आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शुरू किए हैं, ईवी किया है और देश भर में अब चलने लगे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब वो चाहते हैं कि गडकरी साहब जितना इनोवेटिव हैं कि कुछ उनकी कीमतों पर कुछ काम करें, ऐसी कोई सिस्टम पे करें कि वो उससे पेट्रोल का जो आपका सपना है वो भी पूरा हो और लोगों को गाड़ी मिल सके, कुछ ऐसा काम। पहली बात तो ऐसी है, अब इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई। पहले मैं कहता था तो अब आप नहीं, पर लोग पूछते थे गाड़ी बंद होगी तो क्या होगा, चार्जिंग क्या होगा, अब कोई नहीं पूछता। अभी टाटा के इलेक्ट्रिक कार को साल भर लगता है, मुझे पत्र वो आते हैं, बोलते हैं उसको आउट ऑफ टर्न मुझे गाड़ी दो। अब सबकी गाड़ी वेटिंग लिस्ट लगी। अब ऐसा है कि पेट्रोल के लिए आप अगर 10 रुपये खर्चा कर रहे हो, मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है नागपुर में, तो मेरा खर्चा ही एकदम कम हो गया। पेट्रोल का 10 रुपये तो मेरा 1 रुपये हो गया। घर में रात को चार्ज करता हूँ, गाड़ी चला जाता हूँ। स्कूटर, ऑटो रिक्शा ऐसी होती है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रॉब्लम जो है वो आपको मैं पूछना चाहता हूँ। मैं जब मुंबई में मंत्री था और जब वो मुंबई पुणे हाईवे और वर्ली बांद्रा सी लिंक और 55 फ्लाईओवर, तब मैंने सोचा कि मैं अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मोबाइल फ़ोन दूँ। तो मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी थी, 1,35,000। अब कितनी आ गई, अब 5,000 रुपये आ गई। तो जब किसी बात का नंबर बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है। मैं आपको बताता हूँ, अभी लोग होशियार हैं, अभी 400 स्टार्टअप शुरू हुए। अब बजाज ने, टीवीएस ने और इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो 125 किलोमीटर के लिए बैटरी डाली। अब उन्होंने एक स्टडी किया कि कोई भी व्यक्ति स्कूटर रोज कितने किलोमीटर चलाता है। तो निकला टीवीएस के सर्वे में है 24 और बजाज के इसमें है 26। तो उन्होंने क्या किया कि 60 किलोमीटर की बैटरी लाई। अभी जैसे कोई सफाई कामगार है, कंपाउंडर है, जो जरूरत नहीं है, उस तो 25-30 किलोमीटर चलाता है गाड़ी रोज। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कीमत कम कर दी और 400 स्टार्टअप है जो ई स्कूटर बना रहे हैं, ई बाइसिकल बन रही है, ई ऑटो रिक्शा बन रही है, ई रिक्शा बन रही है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे नंबर बढ़ेगा इसकी कीमत कम हो जाएगी और कम हो रही है।
और अभी इसमें और एक रिसर्च हुआ है कि ये 4 प्रकार की बैटरी है। एक लिथियम आयन बैटरी है, अब उसमें नया संशोधन होकर अल्टरनेटिव केमिस्ट्री बदली, सोडियम आयन, जिंक आयन और एल्यूमिनियम आयन है। इसमें ये फरीदाबाद की इंडियन ऑयल ने एक एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी तैयार की, वो और सस्ती है और वो लोग ले रहे हैं। तो लिथियम आयन बैटरी के बजाय दूसरा जब आएगा तो कीमत कम हो जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ, आज से विद इन 2 ईयर्स इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और पेट्रोल स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस और पेट्रोल की बस, डीजल की बस, इनकी कीमत सेम होगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कीमत कम हो जाएगी। जी, फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि जो बात करते हैं सर, ऐसी बात हमारे हिंदुस्तान के राजनेता करते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। देखिए, पहली बात तो आप यू नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जी, आप माफ़ करना, आप मेरे अर्थ का गलत मत निकालना। आप जो राजनीति की बात करते हो वो पावर पॉलिटिक्स की करते हैं और उसी पे चर्चा होती है। मैं भी राजनीतिक नेता हूँ, चुनाव लड़ता हूँ, पार्लियामेंट जीता हूँ, अभी 3 लाख से जीता हूँ, अगले बार 5 लाख से जीतूंगा। काम करने में कोई मुझे कॉन्फिडेंस है। पर मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। राजकारण यानी केवल सत्ताकारण नहीं है। राजकारण ये समाजकारण, राष्ट्रकारण और विकास कारण है। मेरे डेफिनेशन में ये है कि मैं इस देश में मुझे जन्म लेने का मौका मिला, भगवान ने दिया है, ये मेरी मातृभूमि है और इसके लिए मैं कुछ करूं। पहले अपना परिवार और मेरा ठीक देखने के बाद मैं देश को आगे ले जाने के लिए कुछ प्रयास करूं। सो पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं समाज सेवा करता हूं। देखो, आप कोई हॉस्पिटल खोला है, हॉस्पिटल खोलकर गरीबों की मदद करना भी राजकारण है। जी, ये समाज कारण है, ये राष्ट्र कारण है, ये विकास कारण है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि केवल सत्ता कारण जो होता है वो केवल पॉलिटिक्स है। अभी जैसे स्वाधीनता मिलनी चाहिए, इसलिए खादी के कपड़े पहनकर इस देश के लिए क्रांतिकारक है, देशभक्तों ने अपना जीवन दे दिया, वो भी राजकारण कर रहे थे, वो राष्ट्र कारण था। जो लोग समाज में गरीबों की सेवा करते हैं, रोजगार उपलब्ध कराते हैं, हेल्थ सर्विसेज में, एजुकेशन में संस्था चलाते हैं, वो भी राजकारण कर रहे हैं, वो समाज कारण है। दैट इज़ पॉलिटिक्स। राजनीति, बृहत्तर राजनीति, लोक नीति और धर्म नीति। तो हमें राजनीति में केवल सत्ता कारण को हमने राजकारण माना, इसको बदलकर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय या सभी पार्टी के लोग, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। देखो, विचारों में मतभिन्नता कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर विचारधारा के साथ ईमानदारी से रहकर काम करना ही आवश्यक। वी आर नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नॉन अपॉर्चुनिस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए गडकरी साहब के लिए। जो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई कन्विक्शन। I am not going to compromise with my values and my commitment and my conviction. It is a part of my life conviction. मैं जब था तो मुझे कभी मेरे मित्र कहते थे कि जिंदगी भर तुम्हारी पार्टी जीतेगी नहीं जीतेगी। तो नागपुर में आप ही ने उसका एजेंडा, हाँ, हम कभी जीते नहीं। लंबे समय पहली बार आप, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का सांसद कोई बना है तो वो नितिन गडकरी बने हैं नागपुर में। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में समाज के, अभी मैं 2 महीने कोविड के समय था नागपुर में जी, और मैं आपको बताऊँ, मैंने तो कोई अपेक्षा, मैं वैसे अपेक्षा से काम नहीं करता हूँ। मैंने सबकी सेवा की। 100 करोड़ रुपए ऑक्सीजन प्लांट से लेकर रेमडेसिविर बना लिया, मैंने फंगस के इंजेक्शन बना लिए उस समय, जो कुछ संकट गहरा था। 500 वेंटिलेटर्स लोगों को दिए। मैंने कभी इसकी पब्लिसिटी नहीं की, इसके कार्यक्रम नहीं किए। 100 एम्बुलेंस बांटी। मैं जो लोगों को बोलता था, मांगता था, मेरे तरफ से लोगों से दिलाता था, मैं काम करते गया। आपको बताता हूँ, मैंने कोई बैनर, आज तक मैंने कोई पोस्टर लगाता नहीं, बैनर लगाता नहीं। नागपुर की सूरत बदल दी तो पूरा पोस्टर हो गया नितिन मैं गडकरी आपको का। एक बात बताता हूँ कि मैं आज तक 35 साल हुए, मुझे एयरपोर्ट में स्वागत के लिए कोई आता नहीं। छोड़, अब मैं Z+ सिक्योरिटी में तो जो पुलिस वाले बेचारे पीछे आते हैं, क्योंकि उनको ऑर्डर है। बाकी मेरे को कभी हार नहीं, कोई मैं स्वागत नहीं करता। और मैं जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी सिंप्लिसिटी मैंने देखी थी, उनका मेरे ऊपर बहुत प्रेम था। मुंबई में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनका वहाँ संबंध था। तो मैं अब अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस को देख चुका हूँ, तो मैं मानता हूँ कि ये सब बातें बेकार हैं। कटआउट लगाने से कोई वोट नहीं बढ़ता।
और खिला पिला कर भी नहीं, लोग होशियार हो गए। वो बोलते चुनाव का टाइम है, इनसे इतना निकालना है निकाल दो, वोट देना है उसको दो। अगर हम लोग लोगों की ईमानदारी से सेवा करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब छोटी छोटी बातों में लोगों की सेवा करेंगे, तो लोग आपको बिल्कुल याद रखते हैं और वोट देते हैं। ये बहुत निजी बात है, लेकिन मैं जिक्र करूं कि मैं नागपुर में गडकरी साहब से मिला, तो वो फ्लैट में, नागपुर के फ्लैट में आराम से बैठे हुए थे। लगेगा नहीं किसी को कि केंद्र सरकार का इतना बड़ा मंत्री जो है वहाँ रह रहे हैं, मिले नहीं हैं मुझे, तो वहाँ पर भी रह रहे थे, तो वो उतने ही आराम से रह रहे हैं। तो इस बात का जिक्र मैं इसलिए समझा क्योंकि मैं खुद उनसे वहाँ पर मिला हूँ और उनका निजी तौर पर आप सब लोग जानते हैं कि गडकरी साहब कैसे हैं। सर, एक और बड़ा प्रोजेक्ट है गंगा का, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जिस पर आपने भी काम किया, भारत सरकार बहुत काम करती रही, लेकिन ये गंगा जो है वो कैसे अटकी हुई है, वो क्यों नहीं ठीक हो रही? देखिए, अब तो ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, हमने टोटल गंगा में 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाए थे, जिसमें गंगा के साथ साथ 40 उपनदी और नालों को लिया था। एक कोई काली नदी थी, यमुना थी, और हमने दिल्ली की सरकार को, मैंने खुद 6,000 करोड़ रुपए दिए और उनके यमुना का जो गंदा पानी जाता है उसको शुद्ध किया। सोनीपत, पानीपत में हमने प्रोजेक्ट पूरे किए। पटना के लिए मैंने 6,000 करोड़ रुपये दिए, वाराणसी के लिए करीब 3,000 करोड़ दिए, कानपुर में, अब आप यूपी के हैं, एक चमड़ी का पानी निकले, फाफूमाओ नाला था कोई लेदर फैक्ट्री का पूरा पानी वो पूरा बंद करवाया मैंने। तो टोटल 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट थे, 75% प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। 25% प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि जैसे हरिद्वार है, देहरादून है, प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं क्या बताऊँ आपको, सब होटल वाले और घर वाले टॉयलेट लगाते हैं और पानी गंगा में छोड़ रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले बर्तन मांजते, गंदा पानी गंगा में छोड़ देते। फिर मैंने इन सब शहरों को ड्रेनेज की पाइपलाइन डालने के लिए पैसे दिए, हजारों करोड़, ताकि ये पानी गंगा में नहीं जाए। और हमने यमुना, काली नदी, सब नदियों पे काम किया और एक्चुअली काफ़ी बड़े प्रमाण पर, अब मैं परसों ही गंगा में देखा, मैंने वाराणसी में, मैं परसों भी बक्सर गया, डॉक्टर से देखा, तो इस बार मेरे मित्र भी वहाँ गए थे, ये भी गया था कौस्तुभ उनके साथ, तो इन्होंने कहा गंगा बहुत शुद्ध थी। और मैं जब प्रयागराज में कुंभ में गया तो सभी साधु संतों ने बुलाकर मुझे और मेरे मार्फत मोदी जी को धन्यवाद दिए कि पहली बार गंगा में पानी शुद्ध था, और अब वो 25% काम जल्दी पूरा होगा। और एक बात बताता हूँ, मेरी एक कल्पना थी कि सोनीपत से जहाज निकलेगा और मैं ये यमुना में ड्रेजिंग करके ये जहाज निकल के यहाँ से जाएगा मथुरा, मथुरा से जाएगा आगरा, आगरा से जाएगा इटावा और इटावा से जाएगा प्रयागराज, फिर प्रयागराज से वाराणसी मैंने वाटरवेज बना दिया, वाराणसी टू हल्दिया मैंने बना दिया, फिर हल्दिया से बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा वाटरवेज बना दिया। तो मैं चाहता था कि मैं सोनीपत, पानीपत से लेकर साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना तक हमारा नॉर्थ ईस्ट में हमारा माल पानी पे जाए। तो मैंने 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर वर्ल्ड बैंक को दिया था। अब ये प्रोजेक्ट अगर पूरा हो जाएगा और जलमार्ग शुरू हो जाएगा तो हरियाणा, पंजाब का गेहूँ और चावल डायरेक्ट पानी से जाएगा, तो कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी और गंगा के कारण सब एरिया डेवलप हो जाएगा। सर, आपने शिपिंग मिनिस्ट्री को देखा, रोड ट्रांसपोर्ट को अभी देख ही रहे हैं, नमामि गंगे को देखा। कई बार होता है कि सरकार में बहुत सारे मंत्री काम कर रहे हैं, केवल नितिन गडकरी जी की बात नहीं है, अब वो एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ड्रीम है, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फिर मंत्रालय बदल गया है, तो वो काम अधूरे रह जाते हैं। जैसे गंगा हमारी अटक गई, जैसे शिपिंग में आपके जो प्रोजेक्ट थे, जिस अभी भी गंगा में काम चल रहा है, वो रफ्तार से वो काम नहीं होता। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि बार बार, देखिए, कई बार ये तो नहीं होता कि जो ज़्यादा काम करता है उसको ही ट्रांसफर जो काम मुझे मिला वो मैं कर पाऊंगा। अभी जैसे पेडियाट्रिक सर्जन है तो उसको पूछे भाई हार्ट का क्या करना, वो क्या बताएगा। जो तुम्हारे लिए काम है वही करेंगे। बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, काम हो रहा है जी। कुछ उससे दिक्कत है तो मुझे आइडिया नहीं है, पर ये होना चाहिए। इसमें देश में सबका प्रयास है और अभी भी जो मंत्री है वो भी कर रहे हैं काम, वाटर रिसोर्स में रफ्तार कम है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे कम उम्र के अध्यक्ष गडकरी साहब रहे हैं और पार्टी में आकर भी जो सबसे पहली बात उन्होंने कही थी, मुझे याद आता है अध्यक्ष के तौर पे, कि परिक्रमा बंद कीजिए। तो नितिन गडकरी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे तो पार्टी दफ्तर में परिक्रमा बंद करवा दी थी।
अभी देखिए, बंद है या मैं कुछ चल रहा आपको है? मेरे लाइफ की कहानी बताता हूँ। मैं पोस्टर चिपकाता था जी और मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा है, तो मैं मजाक में कहता था महात्मा गांधी जी का भी गंदा हैंड राइटिंग था, तो मैं भी बड़ा आदमी हूँ क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग गंदा है, तो मजाक में कहता था। तो कभी कभी क्या होता, तो मैं ये काले दीवार पर मैं लिखने के भी लायक नहीं था, तो मैं काले दीवार पर सफ़ेद चुना लगाने का काम करता था और साइकिल पे चढ़कर पोस्टर चिपकाता था। मैंने बायोडाटा मेरा छपाया नहीं। मुझे अभी भी दिल्ली में 2 ही रोड मालूम है, मेरे घर से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से घर। अभी भी मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि भूल भुलैया है, मुझे दिल्ली मालूम नहीं, कभी दिल्ली आया नहीं। पहली बार याद है आया, जब पहली बार आप आए थे जब मैं अध्यक्ष आया बनकर दिसंबर में, तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी था। सर्दी के मौके सर्दी पर। का मौसम था, तो मैं उस समय, मेरा अभी वजन कम हो गया, अभी 90, तब 135 किलो था। तो रविशंकर प्रसाद मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैं हाफ शर्ट में ऐसा बैठे हुए तो थे। मैं ऐसा ऐसा करके ठंड में ये हो रहा था, तो उन्होंने कहा ये सब ने कोट पहने, आपने कुछ, तो मेरे पास कोट ही नहीं है क्योंकि नागपुर में ठंड नहीं पड़ती है, तो फिर क्या करना। तो फिर एक गार्ड था जो मोटा था अच्छा सा, उसका चुपचाप कोट लाया और मैंने पहन लिया और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और रात को मैं कैनॉट प्लेस जाकर फिर मैंने उलन के कोट सिलाए। जी तो मैं ये कहता था लोगों को कि वो मैं सर्दी कभी वाली दिल्ली शाम आया मुझे नहीं याद है हूँ, आपकी। मैंने कभी बायोडाटा दिया नहीं, मैं कभी कोई लाइजनिंग किया नहीं, किसी के पास गया नहीं, और मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे उसमें बैठ सकता है, तो तुम काहे के लिए चक्कर काटते हो? तुम अपना काम करो, अच्छा जनता तुमको लेके आगे लेके जाएगी, लोग लेके जाएंगे, पार्टी लेके जाएगी। परिक्रमा अभी बंद हो गई है, चल रही है? नहीं, अभी तो काफ़ी बड़े प्रमाण में, देखो अभी आजकल सर्वे होते हैं। मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो 4 सर्वे करता था, और फिर जब सबको बिठाता था तो वो बोलते थे, तो मैं एक एक सर्वे देखता था जी और बोला ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो उनको ताजुब लगता था क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहती थी। और मेरा काम यही था कि जो परफेक्ट चुनाव जीत सकता है उसको टिकट देना। तो कभी कभी अभी काफ़ी बदल हुआ है, और ये मैं सही बताता हूँ, जनता की नज़रों में ये जो कुछ आर्टिफिशियल प्रयास होते हैं ना, वो नहीं, पोस्टर लगते, कटआउट लगते, मैं मेरे राजनीतिक तो अनुभव सारी के साथ, बर्थडे के पोस्टर्स लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं सब जगह पे। नहीं वो अभी अटल बिहारी वाजपेयी की जाहिर सभा तो हम लिखते थे। अब क्या है कि तुम्हारा काम ही तुमको आगे लेके जाएगा। आर्किमिडीज करके एक साइंटिस्ट है, उनका बहुत सही सिद्धांत था कि कोई भी चीज़ अगर पानी में डुबाओ तो उसका जितना वजन होगा उतना ही पानी ऊपर आएगा। इफ़ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। आप अपनी गुणवत्ता को, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाओ। मैं कभी कभी लोगों को राजनीति में कहता हूँ कि 2 रेखा है, एक आपकी और एक दूसरे की है। तो आपके पास 2 मार्ग है, आपकी रेखा बड़ी करने का मार्ग है और दूसरे की पोषने का मार्ग है, दोनों से बड़ी बन सकती है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ अपनी बड़ी बनाओ, दूसरे की पोषने के बंदे में क्यों बढ़ते हो। और मेरा अनुभव है, इवन पब्लिक लाइफ का भी अनुभव है कि मैं अभी कभी कभी हमारे लोग लाते हैं ना ट्रक में, बसेस में भर के लाते हैं, मैं बोलता हूँ मत लाओ, जिसको आना है उसको आने दो, नहीं आना। परसों मैं हिमाचल प्रदेश गया था जी और मैं वो डिस्ट्रिक्ट था कांगड़ा नहीं, दूसरा जो जहाँ मैं अभी गया था, जहाँ चंबा के पास। चंबा मैं वहाँ गया, वहाँ विधानसभा में जो लोग आए थे उनको 16 घंटे 18 घंटे लगे आने के लिए, आने में रोड ही नहीं है। तो एक 80 साल का आदमी 10-15 लोग लेके मैं जब निकला, इतने लोग थे घरों पर बैठे थे, तो मुझे उसने रोका। तो पुलिस वाले उसको रोक रहे थे, मैं उनके पास गया, तो मैंने उनको कहा क्या है बाबा जी? बोले देखो बेटा, हमारी उम्र हो गई, हमारी उम्र ऐसी निकल गई है, यहाँ कोई रोड नहीं है, तुमसे आखिरी उम्मीद है, कुछ भी करो हमारे रोड बनाओ। यहाँ अगर रोड आएगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा, अब हमारी उम्र हो गई, तुम कुछ भी करो। यही अपेक्षा से इतने दूर दूर से लोग 18 घंटे 16 घंटे पैदल आके वहाँ आए थे। और जब मैंने देखा, वो यूट्यूब पर है वो सभा, घरों पर बैठे थे, दूर दूर से आए थे, उनके मन में आस थी, अपेक्षा थी, उनकी आकांक्षा और अपेक्षा थी कि कुछ न कुछ करके मैं करूँगा और रोड बनेगी। मैं कर रहा हूँ वहाँ काम, बहुत डिफ़िकल्ट है, रोप वे बना रहा हूँ, केबल कार से लोगों को, जो लद्दाख लेह में मैं 30 फेनाकुलर रेलवे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं 260 रोप वे, केबल कार और फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूँ ऊपर के ऊपर जाने के लिए। अब बंगलोर में मैं डबल डेकर 200 लोगों की हवा में चलने वाली बस चलाने का अध्ययन कर रहा हूँ। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स।
गडकरी साहब की पहचान के तौर पे लोग कहते हैं कन्विक्शन है, हार्ड वर्क है, एनर्जी है, फास्ट वर्क है, ऑनेस्टी है, सब कुछ है। ये सब चीज़ों पर सब लोग सहमत होंगे आम तौर पर, लेकिन यही आज की पॉलिटिक्स के नेगेटिव पॉइंट है। देखिए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कोई, मुझे चिंता ही नहीं करना। देखो, दो चीज़ें मैंने की। पहले अखबार पढ़ता था, अब अखबार पढ़ना कम किया, एक हाथ तो थोड़ा 10 मिनट पढ़ता हूँ। टीवी देखना लगभग नहीं के बराबर। तो मैं ये कहता हूँ, जो आया उसके साथ, नहीं आया उसके साथ, जो अच्छा कहे उसके साथ, नहीं कहे उसके साथ, काम करते रहो। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, चलते रहो। जो जिंदगी मिली है, कोई यावत चंद्र दिवाकरो नहीं है, एक दिन तो एंड होने वाला है। जितना मिला, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं, तो मैं कहता हूँ पहले अपना घर परिवार ठीक से देखो, अपना काम करो, और फिर देश के लिए, गरीब के लिए, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए इफ़ यू कैन कंट्रीब्यूट समथिंग, उसकी गरीबी भुखमरी करो, यही राजनीति है। मैं करते रहता हूँ, लोगों का प्रेम मिलते रहता है। अभी मैं बोलता हूँ, अभी कोई तैयारी नहीं, कागज़ नहीं, मैंने ऐसे ही बोला। अब मुझे लाखों रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि मैं जब अभी ऑस्ट्रेलिया में गया तो लोग बोले हम तुम्हारा ये भाषण सुना, अमेरिका में सुनते, तो अभी ये टेक्नोलॉजी बदल गई। अब आज ने मेरी मुलाकात ली, बाद में कभी उठ जाएगी तो लाखों लोग देखते हैं, तो तुरंत मुझे यूट्यूब से पैसा मिलता है। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अभी इतने बड़े प्रमाण पर लोगों का उसमें ये है। मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, जो हूँ वैसा हूँ, लेकिन सर कन्विक्शन है वैसा है। रोज रात को मैं अपना खाना पीना आनंद से पीना है ना, उसका अर्थ जी ये मैं जानता हूँ आपका। मैं वेजिटेरियन हूँ और अल्कोहल कोई लेता नहीं, तो मैं खाने का शौकीन हूँ जी। कर्मण्य व अधिकारस्ते की बात करने वाला आदमी जो फुल ऑफ एनर्जी हो, आज सब लोग देख रहे हैं, वो मजाक में भी पॉलिटिक्स से संन्यास लेने की बात क्यों करता है? मैंने कभी नहीं की। आप लोग थोड़ा सोचो, एक मेरी तकरार है कि मैं जब कोई बोलता हूँ तो उसके सामने वाले 25 वाक्य निकाल दो और नीचे वाले निकाल दो, तो और उल्टा करके झगड़ा लगा दो। तो एक आदमी क्या करता तुम्हारे यहाँ, वो पत्रकारिता का नुकसान कर रहा है। एक आदमी अपने वेबसाइट पर उल्टा तिल्टा डाल देता है, और बड़े लोग उसका आधार लेके फिर एक कार्यक्रम करा देते। नितिन गडकरी ने क्या कहा, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या कहा था जी। हमारे एक मित्र इसीलिए हैं, मैंने कहा कि आप नहीं, सबके सामने गिरीश गांधी करके गांधीवादी कार्यकर्ता है, वो 75 साल के हुए। तो मैंने कहा कि स्वाधीनता के पहले राजनीति कैसी थी, वो मूल्याधिष्ठित थी, कन्विक्शन की थी, और देश को स्वाधीनता देने के लिए थी। फिर राजनीति जब आई कि भाई देश को आगे ले जाना, उसके लिए हुई। अब देश को आगे ले जाना, धीरे धीरे राजनीति जो है वो सत्ता कारण बन गया। तो जिनको समाज के लिए और देश के लिए काम करना है, जिन्होंने त्याग तपस्या बलिदान किया, वो लोग देखते हैं तो उनको निराशा आती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि राजनीति ऐसी चलेगी तो छोड़ देने का चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ऐसा विचार आता है। ऐसा मैंने कहा, पर हमको इसको सुधारना होगा, इसको बदलना होगा, और लीडरशिप में क्वालिटेटिव चेंज करके कन्विक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप, कार्यकर्ताओं को बढ़ाकर हमको देश की लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। ये मैंने पूरा कहा। उसने इधर का खोल दिया, उधर का चला दिया। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। तो मैंने एक को कहा भी, भाई तेरे में धमक नहीं है किसी के ऊपर लिखने की, तो मेरे नाम का उपयोग क्यों करता है? तू अपने नाम से लिखना। तू अगर डरता है तो तू अपने नाम से लिख, जो लिखना। मेरा उपयोग करके उल्टा करके क्यों लिखता है? ऐसा मैंने एक छोटा सा निजी सवाल, गडकरी साहब को बहुत सारे जो निजी लोग हैं जो पहचानते हैं, वो फूडी के तौर पे ज़्यादा जानते हैं। आजकल फूड हैबिट्स में कुछ बड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि मैं जब आप नागपुर से आए थे तब बहुत आपका इंटरेस्ट होता था, हर बात के लिए आप याद करते थे। आपके द्वारा सबको कहूँगा, मैं रोज़ सुबह 1.5 घंटा व्यायाम करता हूँ और प्राणायाम करता हूँ। और मेरा प्राणायाम मुझे एक डॉक्टर ने सिखाया, और उससे मेरी तबीयत सुधर गई। और मैं बहुत फुड़ी हुए ने, वो भेलपूरी, समोसे, आलू बोंडे, भजिया, यही खाने वाला था, डोसा, पुलाव जी। तो अभी मैं अमिताभ बच्चन जी के यहाँ गया था, 1.5 घंटा बैठा था, तो उन्होंने उनके घर में समोसे, आलू बोंडे, ढोकला इतना ला के रखा आपके लिए रखा। तो उन्होंने कहा कि आप तो नितिन जी ये सब बहुत इसके ये है। तो मैंने कहा ये भी लोग बैठे थे, तो मतलब इनको खिला दो। मैं अमिताभ जी, अब मैं पहले 6 समोसे खाता था, अब 1 खाता हूँ। अब क्या हुआ कि मेरी नीयत में कमी नहीं आई है, पर मेरे खाने में कमी आई है। तो मैं अब कम खाता हूँ, और जिसके कारण 135 किलो से अब 90 किलो पे हूँ। दूसरी बात, अब मैंने हेल्थ कॉन्शियस बना हूँ। पहले इनडिसिप्लिन लाइफ था। अब काफ़ी स्वस्थ भी आप दिख रहे हैं। हाँ, और अब दूसरा अब क्या हुआ कि मेरे में इतना फर्क पड़ा,
मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम 10 साल, अमिताभ जी ने कहा कि 10 साल यंग लगते हो। मैं हर साल वो एनडीटीवी के कार्यक्रम के साथ मिलता था, बोले आपने क्या किया। मैं आप सबको कहता हूँ कि मैं जो प्राणायाम करता हूँ वो बहुत सिंपल है। मुझे एक डॉक्टर, मेरा नहीं है ये, मैं फुगा जो होता है वो 10 बार फुगाता हूँ और 5 मोमबत्ती लगाकर उसको 10 बार बुझाता हूँ। और वो जो नाक से श्वास लेता हूँ, नाक, वो मेरा यूट्यूब पर है, 1 करोड़ उसके फॉलोअर हैं और बहुत लोगों की तबीयत सुधर गई। तो मैं ये मानता हूँ कि प्राणायाम अगर आप लोग करेंगे तो चेहरे पर भी तेज आता है, एनर्जी। अभी मैं दिन भर मीटिंगें कर रहा था, आपके यहाँ आना मुझे देरी हुई, मैं एक स्टेट का ये कर रहा था रिव्यू कर। और अभी तक मैं कम से कम 400-500 लोगों को मिला हूँ दिन भर में। फिर भी आज मैं रात को आप 10 बजे तक आपके यहाँ पर रूम पर बड़ी भीड़ बनी रहती है लोगों की मिलने की। हाँ, अभी आज मैं एक इम्पोर्टेंट आदमी को रात को 11 बजे अपॉइंटमेंट दिया। तो ये मैं 12 बजे तक काम करता हूँ, पहले मैं 2 बजे तक करता था, अब 12 बजे तक करता हूँ। लेकिन ये शारीरिक वजन का कम होना और पॉलिटिकल वजन का लगातार बढ़ते जाना, थोड़ा सा इसका भी एक मंत्र देते जाइए। देखो, पॉलिटिकल वजन मेरा क्या है कि नहीं है, इसका हिसाब लगाने के लिए सर आप सब लोग जानते हैं। और आप अभी बताया कि 3 लाख वोटों से जीते हैं नागपुर में और अगली बार 5 लाख से जीतेंगे। और हिंदुस्तान की सरकार में अगर किसी का नाम मंत्री के तौर पे, मैं उसको अतिशयोक्ति के तौर पे नहीं कह रहा, उसमें सबसे बड़ा नाम नितिन गडकरी का आता है। अब एक मंत्र बता जाइए, सबका फायदा हो जाएगा, ये पॉलिटिकल वजन भी बढ़ जाए सबका। मेरे बारे में भी मुझे 4 डिलीट मिली, 4 डिलीट मिली है, डॉक्टरेट से भी बड़ी है। एक मिली पंजाबराव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला की और दूसरी मिली महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी राउरी की, एग्रीकल्चर की, वो एग्रीकल्चर साइंस को मिली। अभी 2 मिल रही है, एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद और एक नांदेड़ की है। अब सही में मेरे लाइफ में हुआ कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ और मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में इसलिए एडमिशन नहीं मिली कि मेरा परसेंटेज 49 पॉइंट समथिंग था और प्रोफेशनल कॉलेज में जो कंडीशन थी कि 50% साइंस ग्रुप में ज़्यादा होगा तो ही आप एलिजिबल हो। तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लायक भी नहीं था, तो मुझे नहीं मिली एडमिशन। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट किया। अब लोग मुझे समझते कि मैं इंजीनियरिंग का तज्ञ हूँ। 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। लोगों को ये गलत फहमी, अब इंजीनियर को भी गलत फहमी कि मैं इंजीनियरिंग का बहुत परफेक्ट आदमी। अब सही में ऐसा है कि मैं तो कॉमन सेंस पे काम करता हूँ। और एक बात जरूर है कि मैं अक्सर एक बात कहता था कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एवरीबडी, चाहे बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, राजनीति हो। और मैं एक बात कहता हूँ, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मुझे बाबा साहब ठाकरे जी ने एक बार वो दिया था, उनका मेरे ऊपर बहुत प्रेम था, ये नीति ये रखो बोले साहब ने। और दूसरा मैंने एक बात ध्यान में रखी है, इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, एंड इफ देर इज नो विल देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च। तो मैं लोगों को बोलता हूँ, आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजन। डिसीजन करो, काम करो, हाँ करो ना करो, जो सही है वो करो, रोको मत, पेंडिंग मत रखो। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी यही फायदा होता ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे पूरे जो कॉन्क्लेव को आपने जिस तरह से वेरी समझ मच। किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपके इसके प्रमुख हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अच्छे काम के लिए। बहुत वी एस तोमर साहब के, चेयरमैन साहब की लीडरशिप में कर रहे हैं। एमडी हमारी हैं दीक्षा जी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन 1 से 2 मिनट हम आपका और लेंगे क्योंकि न्यूज इंडिया ने 1 साल पूरे किए हैं और इसी के उपलक्ष्य में ये कॉन्क्लेव की हमने शुरुआत की। एक केक साउंड प्लीज प्ले करें।
मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो। तो तालियां थोड़ी जोरदार बजनी चाहिए। सर को भी लगना चाहिए कि न्यूज इंडिया के कॉन्क्लेव में गए थे, वहां की कटिंग सेरेमनी। हिंद की आवाज हो, ये जुल्म के खिलाफ हो, ये जीत की पुकार हो और झूठ की ये हार हो। ये इनकलाब की मशाल हो, जब राष्ट्र का सवाल हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो। जुबां पर सवाल हो, सवाल में कुछ धार हो, हर शब्द में हमारे हिंद की ललकार हो बात हर वोट की डंके की चोट हो। अब न महज जज्बात से कोई फैसला हो, हर मसले का हल हो, बस राष्ट्र की ही बात हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो, मन मन में इनकलाब हो, जन जन में राष्ट्रवाद हो। किसान की आवाज हो, ये गांव का मिजाज हो, ना हिंदू मुसलमान हो, ये पूरा हिंदुस्तान हो, ये पूरा हिंदुस्तान हो। ना धर्म की कोई जात हो, अब राष्ट्र की ही बात हो।